हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed some important question answers that were in the form of fill in the blanks from your unit 2. So today we are going to discuss important question answers from the same unit HTML. तो आज के क्वेश्चंस को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा as they are going to help you in your exams. So let's start with the first question, that is, write one basic difference between BG color and background attributes. एक बेसिक डिफरेंस आपको देना है किस किस के बीच में, बीजी कलर और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स के बीच में. तो बीजी एट्रीब्यूट जो हम यूज करते हैं अपना, दैट इज यूज फॉर कलरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके बैकग्राउंड को कलर प्रोवाइड करने के लिए हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं. But when we are using background attribute, it means we are using it to provide a background image to a document. हम अपने डॉक्यूमेंट में एक बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट डज बॉडी टैग इन HTML कंटेन. जो HTML में हम लोग बॉडी टैग इस्तेमाल करते हैं वो बॉडी टैग अपने में क्या रखता है. सो द बॉडी टैग कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. एक HTML डॉक्यूमेंट में हमें जो भी कंटेंट डालना होता है, वेदर इट इज टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, वीडियोस, एनीथिंग, दैट ऑल यू इंक्लूड अंडर योर बॉडी टैग. क्योंकि आपका ये जो बॉडी टैग होता है, जब हम इसे मेंशन करते हैं तो इसके बीच में हम अपना सारा कंटेंट प्लेस करते हैं एंड देन वी क्लोज इट. क्योंकि बॉडी टैग के अंदर ही हम जो कुछ डिस्प्ले करते हैं वो सब हमारा वेब पेज में डिस्प्ले होता है. अदरवाइज इफ यू आर राइटिंग आउटसाइड द बॉडी टैग देन नथिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. क्वेश्चन 3, What happens when we click on a hyperlink on a web page? एक वेब पेज पे अगर आपको एक hyperlink दे रखा होता है, जब आप उसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है. So when you click on a hyperlink on a web page, you are taken to a location or some other web page to which that particular hyperlink is linked. जिस भी particular web page या location से वो hyperlink जुड़ा हुआ होता है वो आपको उस particular location पे पहुंचा देता है. Question 4, Write the purpose of name and half attributes of a tag. A tag के अंदर हम लोग दो attributes इस्तेमाल करते हैं, name और half. तो इन दोनों का ही purpose आपको समझाना है, that for what use they are being used, कि किस काम के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं. So when we are talking about the name attribute, so name attribute does what? It defines the name of a section or segment in the same document. एक particular document के अंदर, यानी कि same वही document के अंदर हम लोग किसी भी section का या segment का name define कर सकते हैं. And the way we write its coding is a write name equals to, and within inverted commas write the name of the segment and then close it with the angular bracket, then write the name of segment and then close your a tag, that is your anchor tag. When we talk about the half attribute, it means we are using this attribute to define the URL of the target location, page or segment. यानी कि जब भी हमें कोई hyperlink अगर बनाना होता है तब हम उस समय इस attribute का इस्तेमाल करते हैं. So when we are using it, we will write it as a half equals to, and within inverted commas we will write the name of the segment but with the hash sign, and then you can write link to segment 1 and close your a tag. And if you have to directly provide the link of a particular website, for that you have to do what? You have to write a half equals to, within inverted commas you have to write the name of the particular website and then provide a particular word, so that when you click on that particular word, that page should make you to leave to that particular location, कि वो आपको directly उस particular hyperlink पे जो आपने बनाया उस particular website पर ले जाए. Question 5. You have to differentiate between container and empty elements of HTML. So container elements are those elements that require both opening and closing tag. It means a starting and ending tag, or you can say off and on tag. So when we are talking about container elements, the
एलिमेंट्स दैट कम अंडर इट आर योर HTML, बॉडी, फॉन्ट एंड मैनी मोर। बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जिन्हें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए होती है। एंड एम्प्टी टैग्स आर दोज दैट डू नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग, जिन्हें कोई भी एंडिंग नहीं चाहिए होती। द लाइक योर BR टैग, HR टैग, इन्हें कोई एंडिंग नहीं चाहिए। यू जस्ट सिंपली मेंशन देम विदाउट अ स्लैश साइन एंड यू विल बी एबल टू सी द एक्शन। Question 6. List any two types of alignment that can be applied on a paragraph in HTML. HTML के अंदर जब हम पैराग्राफ टैग मेंशन करते हैं तो उस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग कौन से दो तरह के अलाइनमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स हैं, दैट इज योर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो आप इनको यूज करके अपने पैराग्राफ को किसी भी पोजीशन में लोकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7. What is the purpose of HTML? HTML का purpose क्या है? Why we are using HTML? So we are using HTML so that we can tell the browser how to display the contents of a hypertext document. हम इसे इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम एक वेब ब्राउज़र को ये बता सकें कि किस तरीके से एक hypertext डॉक्यूमेंट को उसे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। एंड नाउ यू विल आस्क ना कि मैम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो देखिए, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए फिर भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस, अलग अलग तरह के मीडिया एलिमेंट्स, हाइपरलिंक्स, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन 8. एक्सपेंड द टैग्स हेड एंड टाइटल। हेड एंड टाइटल को आपको एक्सपेंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू टेल देयर यूज कि ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। द हेड टैग इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर। डॉक्यूमेंट का जो हेडर होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा HTML और /HTML टैग्स के अंदर लिखा जाता है। Now let's come to the title tag. When we are talking about the title tag, it means we are using this tag to provide some title to the document which is displayed in the title bar at the top of the browser window. जो आपकी browser window का एकदम top होता है, उसमें आपको अपने इस particular tag की मदद से document का title पता लग जाता है, और ये आपकी विंडो के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। और ये किसके अंदर लिखा जाता है? हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। Question 9. Why do we insert comments in an HTML document? एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग comments क्यों लिखते हैं? Even though they are not displayed on a web page, जबकि वो एक वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होते। So we insert comments in HTML comments so that we can explain our code, जिससे कि हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकें। It will also help us when we edit the source code later on when required. और कभी अगर हमें फ्यूचर में उस सोर्स कोड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कमेंट्स हमें मदद करेंगे ये समझने में कि जब हमने पहले कोडिंग करी थी तो वो किस पर्पस से करी थी। क्वेश्चन 10. राइट द एक्सटेंशन ऑफ HTML कोड फाइल और डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आप अपनी हमेशा HTML फाइल को दो तरीके से सेव कर सकते हैं, या तो .html से और विथ .htm। क्वेश्चन 11. हाउ कैन वन इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ वेब पेज। अगर आपको वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइंस इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमारे पास टैग होता है HR। ठीक है, तो जब भी आप HR टैग का इस्तेमाल करेंगे यू विल बी एबल टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस इन योर वेब पेज। क्वेश्चन 12. What is the use of font tag in HTML code? HTML कोड में हम जो font tag इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं? You have to write any two options used with this tag. अब यहाँ पे जो options की बात हो रही है, यहाँ पे options का मतलब है that it is asking you to write the attributes. ठीक है, पेपर में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ऑप्शंस का क्या मतलब है। ऑप्शंस का मतलब है वो आपसे एट्रीब्यूट्स लिखने के लिए कह रहा है कि इस टैग के अंदर आप कौन से एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं। So let's talk about the use of font tag first. So font tag is generally used for changing the appearance of a short segment of text. छोटे से सेगमेंट को अगर हमें टेक्स्ट के चेंज करना है, for that we will use font tag, and the options, it means the attributes that we will use with this tag are your size, color and face. Question 13. What is DHTML? DHTML क्या है? So firstly write the full form of DHTML, that stands for Dynamic Hypertext Markup Language.
इसे हम लैंग्वेज कह तो रहे हैं बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज और वेब स्टैंडर्ड, लेकिन वास्तव में ये ना तो कोई लैंग्वेज है और ना ही कोई वेब स्टैंडर्ड है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, और दीज टेक्नोलॉजीज से मेरा यहाँ पे मतलब है योर HTML, जावास्क्रिप्ट, डोम एंड CSS। इन तीनों को चारों को मिला के हमने एक DHTML लैंग्वेज बनाई है। क्वेश्चन 14, फॉर्म ए CSS कोड विद इन हेड फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। यहाँ आपके आपको स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं। इन स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको क्या करना है, एक CSS कोड बनाना है। तो स्पेसिफिकेशंस आपकी क्या, आपको बैकग्राउंड कलर दे रखा है ब्लू। पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली डॉटम रखनी है एंड कलर जो रखना है टेक्स्ट का वो रेड रखना है। आपकी हेडिंग जो है वो ब्लैक कलर में होनी चाहिए। तो अगर हमें ये कोड लिखना है तो हम क्या करेंगे, और हेड टैग के अंदर लिखना है तो ऑब्वियसली ये हमारा इंटरनल स्टाइल है। तो हेड टैग के अंदर हमें मेंशन करना है तो पहले हमें अपना स्टाइल टैग यूज़ करना होगा। स्टाइल टैग के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे बॉडी, और उसमें हम लोग फिर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कॉलन ब्लू। फिर हमें पैराग्राफ के अंदर देना है कि कलर रेड होना चाहिए और फॉन्ट फैमिली डॉटम होनी चाहिए। और हेडिंग उसने बोला है कि ब्लैक कलर में होनी चाहिए, तो हेडिंग मैंने यहाँ पर H1 ली है एंड आई हैड प्रोवाइडेड द कलर ब्लैक। और ये सब स्टाइल में मेंशन करने के बाद आई हैड क्लोज्ड स्टाइल टैग एज वेल एज योर हेड टैग। क्वेश्चन 15, वट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स कैन बी क्रिएटेड। आप कितने तरह की अलग अलग स्टाइल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट, और ये कैसे एक दूसरे से अलग है। तो देखिए, अगर आप जब आप इनको मेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो आपको अलग से इस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है दैट हाउ आर दीज डिफरेंट। सिंपली यू हैव टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द स्टाइल शीट्स। सो CSS ऑफर्स यू 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स, जो कि आपको एक वेब पेज के साथ लिंक करने में मदद करते हैं। और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इज योर इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं, दे आर एम्बेडेड राइट विद इन योर HTML कोड। ये HTML कोड के साथ ही लिखे जाते हैं सो दैट दे कैन अफेक्ट योर वेब पेज। सेकेंड इज योर इंटरनल। इंटरनल स्टाइल्स आर प्लेस्ड विद इन द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेज। वेब पेज की हेडर इंफॉर्मेशन के अंदर इसको हम करते हैं। जैसे इससे पहले जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने इंटरनल स्टाइल ही यूज किया है। And when you are mentioning all the things inside your header tag, it will affect all the corresponding tags on the page. तो पेज में आप जितने भी टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड इज योर एक्सटर्नल स्टाइल्स। ये क्या होते हैं, ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में कोड किए जाते हैं एंड देन द रेफरेंस ऑफ दैट सेपरेट डॉक्यूमेंट इज गिवन विद इन द हेडर ऑफ योर एक्चुअल वेब पेज सो दैट दे कैन बी लिंक्ड टुगेदर। Question 16. Write the HTML code to display a horizontal line of red color. आपको रेड कलर की horizontal line डिस्प्ले करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि horizontal line के लिए आपके पास HR टैग होता है। ओके, उसके बाद वो रेड कलर की करनी है तो उसका आप एट्रीब्यूट लेंगे कलर। कलर एट्रीब्यूट लेने के बाद आप मेंशन करेंगे कि आपको कौन से कलर की चाहिए। सो हियर इट इज आस्किंग यू फॉर रेड, सो राइट रेड। सो दिस विल बी योर HTML code for horizontal line. Question 17. Identify which of the following is a tag or an attribute. आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा टैग है और कौन सा एट्रीब्यूट है। तो ये जो इसमें आपको दे रखा है लिंक, तो लिंक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एट्रीब्यूट है। टेबल हमारे पास यहाँ पे टैग है। अलाइनमेंट ये भी हमारा एट्रीब्यूट है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टैग के साथ इस्तेमाल होता है। हैव is also an attribute। br हमारा टैग है। border is a attribute। image हमारा टैग है। alt एट्रीब्यूट है क्योंकि इसको हम इमेज टैग के साथ इस्तेमाल करते हैं। एंड src is also an attribute। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा टैग है और कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन से टैग में हम कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस। क्वेश्चन 18. हाउ वुड यू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द टाइटल बार ऑफ ब्राउजर। हेयर इट इज आस्किंग यू कि अगर आपको ब्राउजर के टाइटल बार में टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो वो आप कैसे कराएंगे। हाउ इट इज आस्किंग।
So for the title, the answer is hidden itself in the question. आप टाइटल टैग का इस्तेमाल करेंगे हेड टैग के अंदर, so that you will be able to display the text in the title bar of your browser. Question 19. How the font size of a single line on a web page be changed? अगर वेब पेज पे आपको एक सिंगल लाइन का फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप ये कैसे करेंगे? So if you have to change the font size of a single line, you will use the size attribute. हम size attribute का इस्तेमाल करेंगे हमारे font tag के अंदर. How? I have given you an example over here. यहाँ पे आपको एक example दे रखा है. फॉन्ट आपने टैग लिया, उसके अंदर आपने एट्रीब्यूट मेंशन किया साइज, एंड देन यू हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू इक्वल्स टू 12. फिर आपको लाइन लिखनी है हेलो हाउ आर यू, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का हमें फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, एंड देन क्लोज दैट पर्टिकुलर फॉन्ट टैग. क्वेश्चन 20. What is the purpose of using the tags H1 to H6? H1 से लेके H6 तक जो हम ये tags यूज करते हैं, इनका पर्पस क्या है? सो जो हम ये टैग्स इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज इन HTML एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग, क्योंकि ये हेडिंग के अलग अलग लेवल्स को बताते हैं. H1 जो है वो लार्जेस्ट होता है, H6 आपका स्मॉलेस्ट होता है, और जो बीच में होते हैं वो थोड़े थोड़े करके साइज में डिक्रीज करते चले जाते हैं. Question 21. Where can a comment be placed in an HTML document? HTML document में आप comment को कहाँ place कर सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, और ये कैसे useful है? और the question can also come as कि आप कैसे comment provide करते हैं HTML के अंदर. And the third time it can be asked is why are comments included in HTML document? Comments जो है वो HTML document में क्यों include किए जाते हैं? And you have to explain with an example that how they are included in HTML code. So here you have to write comments are one type of textual content. Comments जो वो एक तरीके के textual content होते हैं that appears in HTML code, जो कि HTML code में तो appear होते हैं but not in the final web page layout. लेकिन जब हम finally अपना web page देखते हैं वहाँ पर हमें comments देखने को नहीं मिलते. Comments जो है वो एक स्पेशल तरह के साइन के बीच में लिखे जाते हैं जो कुछ इस तरीके से नजर आता है. एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग दिस साइन एंड देन यू कैन राइट इन बिटवीन इट इज अ कमेंट. आप यहाँ पे इसको कमेंट लिख सकते हैं. क्वेश्चन 22. राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर. ठीक है, तो चलिए अगर हमें रेड कलर की भी नहीं करनी है, अगर हमें उसका साइज चेंज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं रेड कलर का, तो मान लीजिए हमें उसका साइज चेंज करना है. ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू राइट HR, then you have to write size equals to, you can mention the size like this. Question 23. Write the HTML code to create a paragraph whose text color is blue. आपको HTML कोड लिखना है वो पैराग्राफ बनाने के लिए जिसका टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लू. तो पैराग्राफ के लिए हम लोग P टैग यूज करते हैं, राइट. तो हमने सबसे पहले अपना P टैग यूज कर लिया, फिर उसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है. ठीक है, तो अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, फॉन्ट लेना पड़ेगा, देन उसको हमें कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें बोला है कि ब्लू कलर आप प्रोवाइड करिए, तो हम ब्लू कलर प्रोवाइड कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम इस फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे. इफ यू वांट यू कैन आल्सो मेंशन द टेक्स्ट ओवर हियर, दिस इज पैराग्राफ, यू कैन राइट. ओके, तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं. क्वेश्चन 24. Write the HTML code to display an inline image named pencil.jpg. आपको एक inline image डिस्प्ले करनी है जिसका नाम है pencil.jpg, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, C ड्राइव में, और ये इमेज आपको आपके वेब पेज के सेंटर में डिस्प्ले करवानी है. तो सेंटर में डिस्प्ले करवानी है तो ऑब्वियसली हमें अलाइनमेंट जो है वो सेंटर देना पड़ेगा, और क्योंकि इमेज है तो सबसे पहले आप इमेज लेंगे, उसके बाद हमें उसका सोर्स लेना है तो हमें src एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो इमेज कहाँ पे है,
उन्होंने दिया है कि सी ड्राइव में pencil.jpg के नाम से है, ठीक है। तो आप ये लेंगे एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर उन्होंने कहा सेंटर में डिस्प्ले कराना है तो स्पेस देके आप लेंगे एट्रीब्यूट अलाइनमेंट और फिर आप मेंशन करेंगे सेंटर, ठीक है। इन दिस वे यू कैन डू दिस। तो सेंटर के स्पेलिंग हमेशा आप नोटिस करिएगा कि ये होने चाहिए। अगर आप RE यूज कर लेंगे देन द एक्शन विल नॉट बी परफॉर्म्ड। Question 25. Write the HTML code to send an email to xyz@abc.com through your web page. आपको अपने वेब पेज के थ्रू एक क्या करना है, मेल भेजनी है इस एड्रेस पे। तो उसका HTML कोड क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें एंकर टैग यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर हैव एट्रीब्यूट, और क्योंकि हमें ईमेल भेजनी है तो ईमेल के लिए हमारे पास होता है मेल टू का ऑप्शन, एंड देन दे हैव प्रोवाइडेड यू द एड्रेस। तो आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन करिए एंड देन क्लोज इट विद एंकर टैग। तो इस तरीके से आप HTML कोड लिख सकते हैं जब भी आपको किसी को अगर मेल भेजना हो। क्वेश्चन 26, व्हाट डू यू मीन बाय वी लिंक? वी लिंक से आपका क्या मतलब है? सो वी लिंक की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट इज जनरली नोन एज योर विजिटेड लिंक, एक ऐसा लिंक जिसको हम विजिट कर चुके हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर बॉडी टैग। ये एट्रीब्यूट है एक बॉडी टैग का ही जो कि आपके HTML में इस्तेमाल होता है, एंड इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द लिंक व्हेन इट इज़ बीइंग क्लिक्ड और विजिटेड। जब भी आप किसी लिंक को क्लिक करते हैं या विजिट करते हैं तो उसके कलर को ये स्पेसिफाई करता है। क्वेश्चन 27. Name the attributes of a tag which are used for interlinking in a web page. एक वेब पेज में हम लोग इंटरलिंकिंग के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं ए टैग के अंदर, तो वो एट्रीब्यूट्स आपको बताने हैं। So the attributes that we use for internal linking, the first one is your name or ID, and it is used to identify the internal fragment. For example, you will mention it as a name equals to, then in inverted commas you will write top, close your angular bracket and write the name top and close your anchor tag. The second is linking with hash, and you use your hash symbol in front of the internal fragment. So you will write it as a hash equals to hash top, and then you will write the line go to top that you want to create as your hyperlink, and then close your anchor tag. Question 28. Write the names of two attributes each for the following tags. इन tags के लिए आपको क्या लिखना है, इनके attributes mention करने हैं। Here it is asking you to write two, लेकिन हमने कोशिश करी है कि हम वो सारे attributes लिखें जो कि हम लोग use करते हैं। So the attributes are, for HR you have size, width, no shade. For body you have background, BG color, left margin, top margin, A link. For image, we have the attributes src, alt, align, height and width. For table tag, we have border, border color, frame, rules, cell spacing, cell padding, alignment and background. And A, we have name or have. Question 29. Write the full form of the following tags. ठीक है, आपको क्या रखना है, फॉलोइंग टैग्स की फुल फॉर्म लिखनी है। सो द फर्स्ट वन इज योर LI एंड इट इज स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, आइटम को लिस्ट करिए। A इज योर एंकर टैग, ये आपका एंकर टैग होता है। V लिंक अभी हमने पढ़ा था, V लिंक स्टैंड्स फॉर योर विजिटेड लिंक, ये हमारा विजिटेड लिंक के लिए इस्तेमाल होता है। BR इज फॉर ब्रेक, जब भी हमें कोई लाइन ब्रेक करनी होती है, फॉर दैट पर्पस वी यूज इट। P इज फॉर पैराग्राफ। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, आपको अगर जस्ट पता हो कि कौन सा टैग किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। V अलाइन इज योर वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। V अलाइन का मतलब होता है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। हो सकता है यहाँ पे आपको मेरी राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे जो हम राइटिंग लिख रहे हैं वो यूजुअली थोड़ा डिफरेंट तरह के पेन से होती है। सो एंड TR इज फॉर टेबल रो। तो
तो आप हर टैग को अच्छे से स्टडी करिए कि कौन सा टैग किस लिए आता है, सो दैट इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम you will be able to score full marks in this. Then is question 30. Describe the use of alt attribute with image tag. Image tag में जो हम alt attribute इस्तेमाल करते हैं, you have to write the its use. So alt attribute is used to define the alternate text. किसी भी image के लिए alternate text को define करने के लिए हम लोग इस attribute का इस्तेमाल करते हैं. It tells the website visitor what he or she is missing on the page. अगर कोई विजिटर वेबसाइट को विजिट करता है तो ये जो एट्रीब्यूट है ये उसे बताता है कि वो उस पर्टिकुलर पेज पे क्या चीज मिस कर रहा है. एंड ये कब ये चीज बताता है? व्हेन द ब्राउजर इज नॉट एबल टू लोड इमेजेस, जब आपका ब्राउजर इमेजेस को लोड नहीं कर पा रहा होता. So if you are not able to see the images, the browser will display some alternate text in place of your image. It is good to include all the attribute for each image on a page. हर एक पेज पर इमेज के लिए all attribute include करना अच्छा होता है because it improves the appearance as well as the usefulness of your document. Question 31. Explain the need of linking between web pages. वेब पेजेस के बीच में जो हम लिंकिंग करते हैं वो क्यों चाहिए होती है, क्या ज़रूरत है उसकी? Well, linking between different web pages is required because whenever we create websites, we create different HTML files. यानी कि हम डिफरेंट वेब पेजेस बनाते हैं, एक ही वेब पेज के अंदर सारी कोडिंग तो होती नहीं है. So these file contains the different modules and cannot be open individually. और हर फाइल जो है वो अलग तरीके से डिज़ाइन होती है, इसलिए उसे अलग अलग इंडिविजुअली नहीं खोला जाता. If we link between them, अगर हम उनको लिंक कर देते हैं आपस में, then the website becomes more productive and informative. तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो ज़्यादा अच्छी और इंफॉर्मेटिव बन जाती है. And the persons like to visit such websites that provide them with full information. Question 32. How is external linking different from internal linking? आपको यहाँ पे external linking और internal linking के बीच में difference बताना है. So external linking is a type of linking that goes to another website. External linking का क्या होता है? एक ऐसी linking जो हमें किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाती है. It means हम दो different documents के बीच में एक linking provide कर रहे होते हैं. So if we talk about internal linking, so internal linking क्या होती है? एक ऐसी linking होती है जो एक single वेबसाइट के अंदर पेजेस को आपस में जोड़ती है. वेरियस सेक्शंस जो होते हैं सेम डॉक्यूमेंट के या डिफरेंट डॉक्यूमेंट के वो वहां पर आपको प्रोवाइडेड होते हैं. क्वेश्चन 33. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल टू फंक्शन? अब हम लोग मेल टू फंक्शन का इस्तेमाल करते आए हैं. व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ यूजिंग इट? So it is used to send email messages to multiple recipients. Whenever we have to send a single message to multiple recipients, बहुत सारे लोगों को भेजने होते हैं, तो अब हम मेल टू फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें केवल ईमेल एड्रेस टाइप करना होता है रेसिपिएंट्स का सेम लिंक के अंदर, सेपरेटेड बाय कॉमास. यानी कि अगर आपने एक ABC एड्रेस लिखा है तो उसके बाद कॉमा डालिए, फिर दूसरा एड्रेस दीजिए, फिर कॉमा डालिए, फिर PQR कोई लिख दीजिए, फिर कॉमा डालिए. तो इस तरीके से आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स को अपना मैसेज दे सकते हैं. क्वेश्चन 34. नेम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू HTML. यहाँ पे आपको कुछ चीजें दे रखी हैं, उनको पहचान के आपको उस पर्टिकुलर चीज का नाम देना है HTML के रिगार्ड में. So the first one is this attribute is used for changing the bullet type of list tag. अगर आपको list tag के bullet type change करने हैं तो उसमें आप कौन सा attribute इस्तेमाल करेंगे? So that is your type attribute. Second is this attribute defines the size of the text in the font element. अगर font element के अंदर आपको text का size define करना है, for that you will use size attribute. Third, this attribute changes the background color of a web page. तो background color हम किससे change करते हैं? BG color. Fourth, this tag displays tag in italic. अगर हमें यहाँ पे tag लिखा हुआ है, ये text होना चाहिए. अगर हमें text को italic display करवाना है तो हम यहाँ पे I tag का इस्तेमाल करते हैं.
ये जो एलिमेंट होता है इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। ये डिफाइन करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML है। सो द आंसर लाइज विद इन द क्वेश्चन, द आंसर इज HTML। देन सिक्स्थ इज विच एलिमेंट डिफाइंस द HTML हेडर। कौन सा एलिमेंट HTML के हेडर को डिफाइन करता है और हमारे डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस पे भी कोई असर नहीं पड़ने देता। द आंसर इज हेड। देन इज सेवेंथ, दिस एलिमेंट चेंजेस द कलर ऑफ विजिटेड लिंक। अगर विजिटेड लिंक का आप कलर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है वी लिंक। एट, दिस एलिमेंट डिस्प्लेस टेक्स्ट और करेक्टर्स इन ए स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज। अगर कोई पर्टिकुलर स्टाइल और साइज में आपको अपना टेक्स्ट और करेक्टर्स डिस्प्ले कराने हैं, फॉर दैट यू विल यूज फॉन्ट। क्वेश्चन 35, राइट द HTML कोड टू क्रिएट ए पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज रेड। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से टैग्स आपको यूज करने हैं। तो HTML कोड लिखना है तो आप ऑब्वियस है HTML हेड, टाइटल, ये बॉडी, ये सब यूज करेंगे ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सारे टैग यूज किए। टाइटल के अंदर मैंने पैराग्राफ लिख दिया है, उसके बाद मैंने टाइटल और हेड टैग दोनों क्लोज करे हैं, एंड देन आई हैव ओपन माई बॉडी टैग। बॉडी टैग ओपन करने के बाद मुझे पैराग्राफ का कलर क्या देना है, रेड। तो मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया है, एंड देन आई हैव यूज्ड फॉन्ट टैग। इनसाइड इट आई हैव मेंशन्ड द attribute color and provided it color red, and then write the paragraph like this is a paragraph and close your font tag. After that close the p tag, body tag and HTML tag। तो इस तरीके से आप कोडिंग लिख सकते हैं। तो देखिए अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते, बहुत सिंपल कोडिंग आपसे पूछी जाती है। सो यू कैन डू इट वेरी इजीली, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट माइंड में आपको ये ध्यान रखना है दैट व्हाट टैग इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस एंड व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट। और जो एट्रीब्यूट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स भी हम किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल दिस इज देयर इन योर माइंड। अगर ये सब आपके माइंड में है then you will be able to write this code very easily. So all this is for today। आज के सेशन में हम यही क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो so लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल एंड विद योर फ्रेंड्स एंड अदर, so that they can also get the benefit as they are also preparing for the exams। and the persons who have already subscribed our channel, stay connected as we are going to provide you with more important questions। और वो पर्सन्स जो कि चैनल विजिट कर चुके हैं, वीडियोस देख चुके हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन so that you keep getting the notifications of upcoming sessions in which we are going to discuss some more and more important questions from other units as well as from the papers। आज का जो हमने सेशन लिया था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही हैं, तो इनको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। We will meet you in the next session with some more important questions। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।